Hi friends, welcome to the Expertsedge. So here we are with the ShortCAT series, that is 1 minute methods. So we are starting with the new topic, that is geometry. We typically call it as a Sampurna geometry. So in this, the very first topic which we will be taking is the mass point geometry. You must have come across this through any portal or any videos, but in this we'll go into the deep detail. So here is a snapshot what we will be dealing in mass point geometry. The very first is the mass point geometry basics. Only Cevians case. What is a Cevian? We'll just see in a moment. Going from inward to outward, then application of the questions related to the area of triangle. Then another type, area of triangle, which uses ladder theorem and so on. Then Cevians plus transversal in a single question. And last is 2 point or a 2 pivot case. So we deliberately has given this segregation just to keep the hook in the mind, because geometry is a very vast thing. So let's say if any question comes, right, let's say this is a triangle. So इतनी सारी चीजें इतने theorems है कि दिमाग में सब एकदम से flow है. जैसे यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि सिमिलरिटी लगाना है, राइट, कुछ साइन कोसाइन कुछ भी लगाना शुरू कर दे. तो प्रोवाइडेड यू नो द मेथड अर्लियर, ठीक है, जल्दी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. Now, as the two terms एक बार quickly देख लेते हैं. What does the Cevian means and what is the transversal? So let's say this is a triangle. So Cevian means ये vertex से जो भी लाइन vertex से निकलेगी which originates from vertex and touches the other line is known as Cevian. ठीक है, तो सिंपल ये डेफिनेशन याद रखना. Whereas अगर ट्राइंगल में कोई लाइन वर्टेक्स से नहीं ओरिजिनेट हो रही, साइड से ओरिजिनेट हो रही है और साइड को ही टच हो रही है, दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी नोन एज transversal. Okay, so once I am repeating, Cevian is which originates from vertex, any of the vertex is the corner, and which touches the other side, it is known as Cevian. Whereas transversal is which originates from the side and ends up also at the side only. ठीक है, तो that is a very basic difference between them. Just remember that much only. So now let's go to this question. Now what it says here, BD is to DC is 5:1, A is to EC is 1:3. This can be solved by mass point geometry, but I want you to know general method as well. तो मैं एक बार इसका general method से भी बता देता हूँ. General method will involve the comparison of areas of a triangle like this. So अगर दो triangle है, area of triangle is half base into height, so half तो cancel out हो जाएगा. So what remains is base with the height. So basically if I want to compare two triangles, it is nothing but ratio of their base and ratio of their height. Now remember, let's say if I say this triangle, right, another triangle, let's say this. अब ये जो दो triangle है इनमें height same होगी, ठीक है, not necessarily this height will be something like this 90 degree light, but इन दोनों triangle का height same है. So the area of their ratio of their area will be ratio of their bases. Suppose this is 3 and this is 2. So इनका जो area का ratio रहेगा वो भी 3, let's say 3x and 2x ही रहेगा. Is it clear? अगर base same होता, so ratio of their area would be ratio of their height. Let's say this two triangles like this. ठीक है? Now in this two triangle the base is same. So ratio of their area would depend on their ratio of their height. Not necessarily कि ये height होगा, जो भी height होगा, let's say this 90 degree, right? But दोनों का height same है. So let's say the ratio, let's say ये 2 है, ये 3 है. So छोटे का this will be 2x or 2k and this will be 3k. ठीक है? So just remember this fact that whenever you want to compare the areas of the triangle, you just compare height or the base. अगर दोनों सेम हो तो area would be equal. Basically that is the property of your median. So now let's use this here. Now what it says, ठीक है, I need to do construction. I'll join this OC, ठीक है. Now triangle BOD, ठीक है, triangle BOD and triangle COD, they have the same height, ठीक है. Triangle BOD and they have the same height. So ratio of their areas would be ratio of their bases. What is the ratio of their base? 5:1. So उनके area का भी ratio होगा 5:1. So let's say 5k, let's say 1k. Okay. Now coming to this another triangle AOE and EOC, they will also have the same height. ठीक है. If you can't visualize, just ये ऐसे कुछ height निकाल लो, यहाँ से ये कुछ ऐसी height होगी, right, उनकी.
whatever it can be, not necessarily कि OE हाइट होगा, ठीक है, बट जो भी हाइट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा. So a ratio of their area would be ratio of their bases, and base किस ratio में उनके bases are in the ratio 1:3. So just let me quickly write it. So because a different ratio, I'll use the different constant 1x 3x, and let's say this part as z. Okay, now coming to the two bigger triangles, tell me ABD. Can I say ABD, triangle ABD and triangle ACD, they share the same height, right? जो भी उनका height होगा, let's say like this, but दोनों का height same होगा, right? So if their height is same, ratio of their area would be what? Ratio of their bases. And what is the ratio of their base? I can clearly see it's a ratio of bases 5:1. So ABD का area होगा 5, इसका होगा 1. Now in terms of variable, tell me what is the area of ABD in terms of variable? It is Z plus 5K. So ABD का area है Z plus 5K, whereas ACD का area क्या है? X plus 3X plus 1K, that is 4X plus K equal to 5/1. Just cross multiply, I am writing it here. Okay, so क्या होगा वो Z plus 5K should be equal to 5 for the 20X plus 5K. Now this 5K will get cancelled out, so I'll get Z equal to 20X. So this is the relation I got between Z and X. So I must replace Z with 20X. So let's say ये Z के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ 20X. Now what is he asking? BO to OE. Now let's see here, BO, ABO and AEO, they share the same height. Again, जो भी उनका हाइट होगा, बट दोनों भी ट्रायंगल का हाइट वुड बी सेम. गाइज ट्रायंगल आड़ा दिया हो टेढ़ा दिया हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर उनका वर्टेक्स दोनों कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहा है और बेस एकदम सेम है, तो दे हैव टू हैव द सेम हाइट. सो आई कैन से रेशियो ऑफ देयर बेसिस वुड बी रेशियो ऑफ देयर हाइट. नाउ रेशियो ऑफ देयर बेसिस विल बी रेशियो ऑफ देयर एरियाज. नाउ आई नो द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 20x. I will write it here, triangle AOB upon triangle AOE. They have the area का ratio है 20x upon 1x. So that will be nothing but their ratio of their bases, right? Because the area अगर 20:x है, तो area of base will also be 20:1, and that is what he is asking, right? उनका base is BO to OE. So answer of this question is 20:1. Okay, so we though took 2 to 3 minutes for solving this, but knowing a general method is very important. Okay, further on I will not use the general method, I will use the mass point geometry. It's hardly a 30 seconds question. Okay, let's go to the mass point geometry. Now what is the mass point geometry? I'll give a very simple example. I will not go into very much theoretical things. Let's say there is a beam balance and here it is 5 kg और यहाँ पे भी मैंने 5 किलो रखा है ना. अगर मैं इसको सेंटर से पिक करता हूँ, so let's say सेंटर से पिक करता हूँ, तो it would be balanced, right? But what if I don't pick it up from the center? Let's say I pick it up from here. Let's say this is 1 and let's say this is 2. This is the length of the rod. तो यहाँ पे 1 और 2 है. Now it will not be balanced. So to balance at this point only, I need to put certain weight in some of the pan. In which pan I need to put the weight? I need to put weight in this left वाला pan. यहाँ मुझे कुछ weight डालना पड़ेगा. ठीक है, तो सिंपल याद रखना एनालॉजी. इसके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल वेट कितना आएगा? लेंथ इंटू वेट. व्हाट इज द लेंथ इंटू वेट? 2 into 5. तो अगर यहाँ पे 10 किलो 10 का वेट आ रहा है, 10 न्यूटन और राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 आना चाहिए. सो दिस इज फिक्स्ड माय 1 into what will be 10? 1 into 10 only. सो ये 5 है, तो मुझे और 5 kg ऐड करना पड़ेगा. इफ इट्स अ 5 kg, 5 5 10, 10 into 1 it will also be 10. Now it would be balanced at this point only. ठीक है, so I hope this point is clear. तो just remember that weight and length are inversely proportional. So if I say, let's say that here it is 4 kg and here it is 5 kg, just an example. So at what length ratio I should pick it up that they are balanced at this point only? So it is nothing but
हियर फ्रॉम जस्ट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये 5 है तो ये 5 इधर आएगा, ये 4 है तो इधर आएगा. नाउ यू कैन सी द वेट्स आर द सेम, 5 4 20, 5 4 20. इफ आई पिक इट अप लाइक दिस सेंटर, तो सारा वेट यहाँ पे सेंटर में एक्यूमुलेट होगा, राइट? अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस से उठाता हूँ या पूरा असेंबली, तो एवरीथिंग विल बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर. यहाँ पे कितना वेट शो होगा? इट विल बी द एडिशन ऑफ द टू एक्सट्रीम वेट, 5 kg प्लस 4 kg, ये आएगा 9 kg. Okay, so I hope this point is clear. Just and one more example. Suppose यहाँ पे 20 kg and let's say this is 2 kg and let's say यहाँ पे this is 5 kg. Tell me कहाँ पे कितना आएगा? Now what it is here? Left hand side में कितना आ रहा है? 20, right hand side में 20 into 2 40. So right में भी 40 आना चाहिए. What into 5 will be 40? ठीक है, don't use equation for this that this is x, 5 into x equal to 2 into 20, right? But you can do it orally. 45 into this should be 8. So जब ये 8:2 होगा तब आपका आंसर आएगा. So just remember this, weight and length in such a balance they are inversely proportional. Okay, something like this. So weight of first pan into length of first pan, whereas second का weight and into length. Okay, now let's try to apply this. ओके, द सेम क्वेश्चन लास्ट वन. यहाँ पे AO by OD पूछा है, मैं BO by OE भी निकाल लेता हूं जो हमने लास्ट टाइम निकाला था, जिसका आंसर 20:1 था, राइट? नाउ दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 3. लेट्स से आई पिक अप दिस स्केल BDC, ये मेरी स्केल है. लेंथ का रेशियो क्या है? 5:1. अगर मेरा लेंथ का रेशियो 5:1 है, वेट का रेशियो क्या होगा? इनवर्स. तो दिस हैज टू बी 1 kg. मैं वेट है इसलिए kg लिख रहा हूं, ठीक है? तो यू वोंट गेट एनी कंफ्यूज. इट वुड बी 5 kg. इज इट क्लियर? तो ये 1 किलो हुआ, ये 5 किलो हुआ. नाउ सेंटर में वेट कितना दिखाएगा? सेंटर में वेट होगा दोनों का एडिशन. व्हाट इज 5 + 1? दिस वुड बी 6 kg. इज इट क्लियर? या. नाउ हियर, नाउ कम टू दिस स्केल AEC. ठीक है, अभी ये स्केल पे आ जाओ. C पे टोटल वेट कितना आ रहा है? देखो, ये 3 का लेंथ है, 5 का वेट है, ये कॉमन वेट है ना 5, तो ये इस स्केल का भी हिस्सा होगा. सो 5 kg इंटू 3 कितना? 15. सो यहाँ पे A पे भी 15 बनना चाहिए. लेंथ इज 1 इंटू व्हाट विल बी 15? इट हैज टू बी 15 किलो. सेंटर में कितना आएगा? ये 15 किलो और ये 5 किलो. सेंटर में आएगा 15 + 5 20 किलो. Now look at this scale BOE. BOE के लेफ्ट में कितना है वेट? 1 किलो. E पे कितना है? 20 किलो. तो अगर मेरा वेट का रेशियो है 1:20, लेंथ का रेशियो क्या होगा? इनवर्स. सो दिस वुड बी 20 एंड दिस वुड बी 1, राइट? दैट इज व्हाट वी गॉट इन द लास्ट क्वेश्चन. हमने ही सॉल्व किया था ना. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20:1. आई होप यू कैन सी कितने जल्दी ये आ गया, प्रोवाइडेड यू नो द मेथड. सिमिलरली व्हाट विल बी AO by OD? A पे कितना वेट है? 15 किलो और D पे कितना है? 6. तो अगर वेट का रेशियो 15:6 है, लेंथ का रेशियो हो जाएगा 6:15. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द सेकेंड वन, विल बी 6:15. दैट इज 3 से काट दो, 3 2s 3 5s 2:5 इज द आंसर. ओके, सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो. बिलीव मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड कंसेप्ट, राइट? ज्योमेट्री विल गो इनटू वेरी मच डिटेल. इसके बाद भी आप जो करोगे, बिलीव मी, सारे शॉर्टकट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे. इतना रिवाइज करो, ज्योमेट्री में आई कैन गारंटी एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग थ्रू. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, आई सजेस्ट पॉज अ वीडियो एंड देन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. सो व्हाट इट सेज, BP to PC. Yeah, sorry. BP is 9, PC is 1, AQ is 3 and QC is 2. Okay, and find AS to SP. Okay, so I'll start with BP to PC. Let's say this scale BPC. What is the length का ratio? You can see length का ratio is 9:1. Weight का ratio क्या होगा? Inverse. So here it will be 1 kg, here it will be 9 kg. ठीक है, सेंटर में कितना आएगा? 9 + 1 10 kg.
ठीक है. Now coming to this scale A Q C, A Q and C. At C the weight is 9 kg. 9 into 2 what it will be? 18. So A पे भी मेरा 18 होना चाहिए. Length is 3. 3 into what will be 18? It would be 6 kg. So ये 6 kg और ये 9 kg, यहाँ पे आना चाहिए मेरा 15 kg. That is at Q. Now what is he asking? I got all the weights AS to SP. So ASP ये स्केल में देखूंगा. ASP कितना है? A पे द पॉइंट इज 6 किलो एंड P पे द वेट इज 10 किलो. अगर वेट का रेशियो 6:10 है, लेंथ का रेशियो क्या होगा? इनवर्स 6 आ जाएगा इधर, 10 आ जाएगा इधर. सो द रेशियो ऑफ AS to SP is 10:6. So AS is 10, this is 6. What is the ratio? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3. So answer of this question is 5:3. ठीक है, pretty easy. Just practice it a bit, you will get the hang of it. Question number 3. Now let's increase the speed. Quickly करते हैं. BD to DC. This is 5, this is 4, this is 3 and this is 2. Now यहाँ पे एक छोटा सा चीज ध्यान रखना. अगर आप डायरेक्ट 5:4 से जाओगे, है ना, लेट्स से इन्हें 4 लिया, ये 5 लिया. नाउ 5 2s are 10. 3 के टेबल में 10 नहीं आता. दिस हैज टू बी देन 10/3, राइट. बट ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा, तो फ्रैक्शंस में खेलना इज नॉट गुड, राइट. सो हाउ टू अवॉइड फ्रैक्शन? अ सिंपल वे इज, नाउ टेल मी विच आर द 2 स्केल्स जिसपे वैल्यूज है. एक स्केल है मेरी BDC और एक स्केल है मेरी AEC. विच इज अ कॉमन एलिमेंट. कॉमन कहां पे टच हो रहे हैं वो दोनों? इफ यू सी दैट टचिंग एट C. C इज द कॉमन एलिमेंट. So what will do? You will always start with the common thing, that is C से आप शुरू करोगे. C से अगर मैं AEC स्केल देखूंगा तो मेरा दूर वाला लेग कौन सा है? 2 is the nearer one. जो दूर वाला है वो 3 है, राइट. सिमिलरली ये वाले स्केल में दूर कौन है? 4 या 5 C से, ये it would be 5. So what I'll do? I'll take the LCM of 5 and 3. What is the LCM of 5 and 3? LCM of 5 and 3 will be 15. So at this common point, I will take 15 as a weight and you will not get any fractions. ठीक है. So at C, it will be 15 kg. Is this starting point clear? ये starting point important है, नहीं तो यहीं पे शुरुआती अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आगे अटकेंगे. Once again I am repeating, ये जो पहले आप स्टार्ट करोगे कॉमन पॉइंट से, तो कॉमन क्या है? BDC में और AEC में C. C का इस लेग में दूर कौन है? 2 या 3? 3. सिमिलरली इस लेग में दूर कौन है? 4 या 5? 5. So 3 or 5, I'll take the LCM. 3 and 5 का LCM is 15. So I'll keep 15. Now was simple calculation. Now C पे इधर कितना वेट आ रहा है? 15 into 4 60. तो यहाँ पे B पे भी 60 आना चाहिए. यहाँ पे लेंथ है 5, तो कितना वेट होगा? 60/5. Here it will be 12 kg. Is it clear? हो रहा है ना बैलेंस? 12 into 5 60, 4 into 15 60. सेंटर में वेट कितना आएगा? डायरेक्ट D पे वेट आएगा 15 + 12, ये ऐड होता है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, 27 kg. ठीक है. नाउ कम टू दिस स्केल AEC. इधर C पे कितना आ रहा है? E के थ्रू 2 into 15 30. तो मेरा A पे भी 30 होना चाहिए. तो A पे कितना पॉइंट होगा? लेंथ इज 3, सो 30/3, दैट इज 10 kg यहाँ पे आएगा. सेंटर में वेट कितना आएगा? ये 10 किलो, ये 15 किलो. दिस विल कम आउट टू बी 25 kg. नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन. What is he asking? AF/FD plus BF/FE. So just let us quickly solve it. AFD, तो A पे वेट है 10, तो वो 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 27 यहाँ पे आ जाएगा, राइट. नाउ यहाँ पे वेट का रेशियो है 12:25. लेंथ का रेशियो रहेगा इनवर्स, तो दिस हैज टू बी 25 and this has to be 12 kg. That's it. Now we got it. So AF, how much is AF? So just let's solve the answer now. AF is 27. FD is how much? 10. Right? BF is 25 and this is 12. Okay. Now you can solve this. ये simple जो भी LCM लेके आपका answer. This is the final answer. Is everyone clear with this? ठीक है. आई एम जस्ट लिविंग दिस कैलकुलेशन टू यू. इट इज सिंपल, सब सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके या पॉइंट में आ जाओ. 2.7 प्लस दिस विल बी समथिंग. नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 4. D is the, what it says, D is the midpoint, right? So midpoint of the BC means 1:1. Okay. And E is the midpoint of AD. Okay, this is also 1:1. ठीक है, ये तो फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया. D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, B प्रोसेस थ्रू E to F, he is asking A. तो ठीक है, D यहाँ पे कॉमन है, आप कितना वेट लोगे, तो यहाँ पे 1 kg ले लो, यहाँ पे भी 1 kg ले लो, सेंटर में कितना आएगा 2 kg, राइट. इफ दिस इज 2 kg, 2 1s are 2, ये भी 2 kg हो जाएगा. इफ दिस इज 2 kg, ये 2 and 1, सो C पे 1 किलो है, A पे 2 किलो है, तो उनका रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, एंड दैट इज व्हाट इज आस्किंग. सो AF2 FC will be nothing but 1:2. ठीक है, this was a very simple question. I'm deliberately starting with simple question because this is a new concept, but practice it a bit, you'll get a good hang on it. Now question number 5. ठीक है, can you see all are Cevian? अब तक हम Cevian ही कर रहे थे, जितने भी ये देखोगे सारे vertex से निकल रहे, right? So what it says, CE is 1, EA is also 1, AF is 1, and this is 3. CD to DB ये रेशियो निकालना है. तो हमको क्या करना है इसमें, अभी बताओ. हम कॉमन पॉइंट से शुरू करते हैं, विच इज अ कॉमन पॉइंट A, राइट. सो A पे क्या रखोगे आप, एलसीएम दूर वाला, ये 1 है, तो ये 1, और यहाँ पे 1 और 3, तो 1 और 3 का एलसीएम. व्हाट इज 1 और 3 का एलसीएम? 1 और 3 का एलसीएम इज 3 ओनली, तो आई विल कीप इट हियर 3 kg. तो अगर ये 3 kg है, 3 into 1 3, ये भी होगा 1 into 3, यहाँ पे भी 3 kg, ये 3 kg, तो सेंटर में आएगा 3 + 3 6 kg. ये 3 1s are 3, ये 3 है, तो यहाँ पे इट शुड बी 1 kg, तो ये इट इज 1 kg. 3 + 3 ये भी आएगा 6 kg, राइट. नॉट 6, 3 + 1 इट शुड बी 4 kg. नाउ ये यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 3 kg है सेंटर में, दैट इज D. यहाँ पे कितना टोटल वेट आएगा, 3 + 1, इट वुड बी 4 kg. आई थिंक वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. मैं सारे निकाल रहा हूँ, राइट. CD to DB, तो C पे कितना वेट है, C पे 3 किलो है, B पे 1 किलो है, तो रेशियो ऑफ देयर लेंथ विल बी इनवर्स. तो अगर ये 3 है, ये 1 है, तो इट हैज टू बी 1, इट हैज टू बी 3. सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 1:3, राइट. आई होप यू आर गेटिंग दिस मेथड. Now let's go to the next question. Okay, अब यहाँ पे नंबर की जगह वेरिएबल दिया, बट इट डजंट मैटर, सिंपल सी चीज है, जल्दी जल्दी करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मच इट विल बी, ये 1 है, ये m है, सो हियर इट वुड बी m kg, राइट, एंड हियर इट वुड बी 1 kg. सेंटर में वेट कितना आएगा D पे, इट वुड बी m + 1. ओके, नाउ कम टू दिस स्केल, दैट इज AOD. ये D पॉइंट पे कितना वेट आ रहा है, इफ यू कैन सी, D पे वेट आएगा मेरा n, राइट, n into m + 1. सो यहाँ पे A पे भी कितना वेट आना चाहिए, बिकॉज इट्स 1 into this weight should be n into m + 1. ओके, नाउ A पे अगर वेट है मेरा n into m + 1 और C पे मेरा वेट है 1 kg, सो जो उनका रेशियो ऑफ लेंथ होगा, इट वुड बी व्हाट, रेशियो ऑफ देयर वेट्स, इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर वेट्स. तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये n into m + 1. सो दैट शुड बी योर आंसर, 1:2, दैट इज D ऑप्शन. Okay, instead of number it was just a variable, but the concept remains the same. Okay, now this length of BF. ठीक है, I am leaving this question by mass point geometry up to you guys. ठीक है, there is something called Cevian, right? तो Cevian का एक Cevian theorem होता है. ठीक है, जस्ट ये भी एक माइंड में रख लेना. Geometry is hell lot of fundas, hell lot of theorems. प्लीज अच्छे से इसके नोट्स बनाओ पॉइंट वाइज, एटलीस्ट दिमाग में 300-400 पॉइंट्स रहने चाहिए. ठीक है, तभी जाके फंडे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. तो अदरवाइज अगर आप याद नहीं रखोगे तो सब थ्योरम मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज
P, let's say this is Q, let's say this is R, let's say this is S, let's say this is T, and let's say this is U. Now what does the Cevian theorem says? ठीक है, just remember this theorem, बहुत easy सा है. अल्टरनेट वाले आपको मल्टीप्लाई करने, अल्टरनेट वाले लेट्स से दैट मींस इफ आई स्टार्ट विथ P का एक छोड़ के इधर गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो इफ आई गो क्लॉकवाइज, टेल मी P के बाद कौन आएगा? Q, बट आपको Q छोड़ना है, ठीक है? Q मतलब उसके बाद कौन होगा? R. एवरी अल्टरनेट यू नीड टू पिक अप. सो दिस थ्योरम सेज P इंटू R, फिर R के बाद आपको S छोड़ना है, S को छोड़ दो, बचा कौन? T. P इंटू R इंटू T शुड बी इक्वल टू, अब जो अपने छोड़े थे उनको भी मल्टीप्लाई कर, दैट इज Q, एक छोड़ के S इंटू U. दिस इज व्हाट अ सेवियन थ्योरम इज. ठीक है, सो आप जो अभी तक हमने मास पॉइंट ज्योमेट्री से किया, यू कैन यूज सेवियन थ्योरम एज वेल. जैसे ये क्वेश्चन था, राइट? यू कैन यूज दिस. सो अभी सेवियन थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स से टेल मी क्या होगा? 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 इंटू नॉट 1 को छोड़ के 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, लेट्स से x इक्वल टू क्या क्या छोड़ा था? 1 इंटू 3 इंटू 4. सो इफ यू सॉल्व दिस, ये सब कट के मेरा x आ जाएगा 1. So answer of this particular question is 1. Okay, so even if you solve as mass point geometry, वही आने वाला है. ठीक है, so I am solved it by Cevian. So these were the basic questions dealing with the Cevian. I hope you got them right. ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इश्यू हो, you can always contact us via Telegram. ठीक है, the link is given below. It must be flashing at your screen. Yeah, so let's now take the second type. What is the second type? Going from inward to outward. What does that mean? अब तक क्या था? हमको ये बाहर वाली रेशियो दिए थे, AQ, QC, राइट? BP, PC, ये दिया होता था और अंदर वाले रेशियो हम निकालते थे, राइट? So that was going from outward to inward. थोड़ा वो easy था. Why? Because जो इसका पाइवोट है, पाइवोट मीन्स जो भी इनका नीच वाला पॉइंट है ये, और इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये दोनों डिफरेंट थे, तो इसलिए कुछ ज्यादा इश्यू नहीं हो रहा था. बट अगर मैं दो स्केल लू, BSQ और ASQ, दोनों का भी आप पॉइंट देखोगे सेम है, राइट? सो दोनों भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस होना चाहिए. नाउ दैट इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग टू आइडेंटिफाई. नाउ सी हियर हाउ वी गोना डू इट. So what is it? AS to SP. AS is 2, SP is 3, BS is 3 and SQ is 1. ठीक है, so now it is going from, so remember the starting step. ठीक है, let me write it here as well. Starting step, how to start. ठीक है, तो जो स्केल है, कौन सी स्केल है? The scale is BSQ. उसका टोटल बता सकते हो कितना है? What is the total of BSQ? I'm writing total. Total is, this is 3 and this is 1. So 3 plus 1, 4. Similarly, ASP का टोटल क्या है? 2 and 3, 5, right? So the what is the starting step? जो भी टोटल है 2 plus 3 and 3 plus 1, आप इसका LCM लोगे. What is LCM of 4 and 5? LCM of 4 and 5 is 20. ठीक है, so remember this starting point that मैं बीच में, that is at the place of S, यहां पे मैं रखूंगा 20 kg. ठीक है, this should be your starting point. Please remember this part. ठीक है, ओके. अब ये 20 किलो को मुझे इस रेशियो में बांटना है, तो लेट्स से मैं अगर BSQ मेरी स्केल ले रहा हूं, क्या रेशियो में मुझे बांटना है? 3:1. आई विल डू इट ओरली. ठीक है, वैसे क्या होगा, नहीं तो 20 को आपको 3:1 मतलब 3/4 पार्ट ऑफ 20, बट प्लीज डोंट डू इट लाइक दिस. बेसिकली कितने? 3 और 1, 4 इक्वल टुकड़े करने. डू इट ओरली जितना आप ज्यादा कर सकते हो. 3 और 1, 4 इक्वल. एक लेट्स से रस्सी है 20 की, या लेट्स से चॉकलेट है 20, 4 इक्वल टुकड़े करने. एक टुकड़ा कितने का होगा? 20 के 4 इक्वल टुकड़े, एक टुकड़ा होगा 5 किलो, राइट? सो 5 into 3, उसके 3 पार्ट, दैट इज 15 kg. ये 3 वाला अपोजिट में इधर आएगा. So I will write at Q 15. ठीक है, so I hope this point is clear. Once again I am repeating it. 20 में मुझे कैसे आया? 2 plus 3, 3 plus 1, that is 4 and 5 का LCM. 20 को मुझे तोड़ना था 3:1 पार्ट में, that is total 3 plus 1, 4 पार्ट. 20 के 4 पार्ट मतलब एक पार्ट हुआ 5 का,
तो 5 इंटू 3 15, 3 का मेरा लेंथ 3 है तो वेट अपोजिट साइड में आता है तो 15। अब ये बच्चा 1 इंटू 5 तो इट शुड बी 5 kg। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों का वेट का ऐड करोगे तो 15 प्लस 5 20 बराबर सेंटर में 20 है। नाउ कम टू दिस ASP स्केल। कितने टुकड़े करने हैं? 2 और 3। व्हाट इज 2 प्लस 3? 5 पार्ट्स करने। 20 के 5 पार्ट्स मतलब एक पार्ट कितने का हुआ? 20 के 5 पार्ट मतलब एक पार्ट हुआ 4, राइट। तो ये 2 पार्ट कितने हुए? 8। तो 2 वाला अपोजिट पे आएगा तो P पे हो जाएगा 8 kg और 4 3 12 kg। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब कम टू AQC स्केल। सेंटर में 15 है, यहां पे 12 है, राइट। सेंटर में दोनों वेट का ऐड होके आता है। C पे कुछ वेट होगा, A पे कुछ वेट होगा, दोनों को ऐड करके 15 आएगा, राइट। तो अगर A पे 12 है तो C पे कितना आएगा? सेंटर में 15 आने के लिए 15 माइनस 12 इट हैज टू बी 3 kg। यू कैन सी इट फ्रॉम द अदर स्केल, दोनों से बैलेंस हो रहा होगा। यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 3 kg है, देखो सेंटर में बराबर 8 आया, राइट। अगर ये मैच नहीं हुआ मतलब आपका गलत है, ठीक है। सो नाउ टेल मी द आंसर। व्हाट इज ही आस्किंग? BPPC, दैट इज दिस स्केल। B पे 5 किलो है, C पे 3 किलो है, तो अगर वेट का रेशियो 5:3 है, लेंथ का रेशियो होगा 3:5। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3:5। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। सो गोइंग फ्रॉम इनवर्ट टू आउटवर्ड, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। दिस व्हाट इज गिविंग? 80 to TD। 80 to TD is 3 is nothing but 3:1 होगा वो, ठीक है। एनीथिंग इज 3 मतलब 3/1 होता है, राइट। सो अगर 80 मेरा 3 है तो TD मेरा 1 होगा। नेक्स्ट इज BT to TE, ये 4 है तो ये 1 होगा। अगेन दिस इज फ्रॉम गोइंग इनवर्ड टू आउटवर्ड, राइट। सो व्हाट इज द स्टेप आई सेड? इनिशियल स्टार्टिंग स्टेप, प्लीज रिमेंबर दैट थिंग, अदरवाइज ये क्वेश्चन शुरू करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा? यू विल टेक LCM ऑफ द लेंथ। व्हाट इज LCM ऑफ BE एंड AD? कितना है BE और AD? BE is 5, AD is 3 plus 1 4। अगेन 5 plus 5 and 4 का LCM 20। तो मैं सेंटर में कितना रखूंगा? 20 kg। सो यहां पे मेरा आएगा 20 kg। I deliberately write kg so that you should not get it. Now again 20 के 3 plus 1 4 इक्वल पार्ट करने। 20 के 4 इक्वल पार्ट मींस एक पार्ट होगा 5 का, राइट। सो अगर एक पार्ट 5 का हुआ तो 3 पार्ट हो गए 15 के, राइट। सो यहाँ पे आएगा आपका 15 kg, यहाँ पे आएगा आपका 5 kg। अगेन 20 के 4 और 5 पार्ट, एक पार्ट होगा 4 का, सो 4 4 यहाँ पे आएगा 16 kg और यहाँ पे आएगा 4 kg, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो अभी आप कोई भी स्केल से ले लो, लेट्स से मैं AEC से लेता हूँ। यहाँ पे 5 है, सेंटर में 16 है, तो C पे होना चाहिए कितना? 16 माइनस 5 दैट इज 11 kg। इज इट बैलेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइड? प्लीज सी, यहाँ पे 4 किलो, 11 किलो, 15 किलो, यस। सो इट्स बैलेंस, दैट मीन्स दिस इज परफेक्ट। सो व्हाट इज ही आस्किंग? CD to DB। वेयर इज CD स्केल? दिस इज C पे है 11, B पे है 4। अगर वेट का रेशियो 4:11 है, लेंथ का रेशियो होगा यहाँ पे 11, यहाँ पे 4। सो CD हैज टू बी 4, DB हैज टू बी 11। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4:11, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ABCD square BP to PM, it's a square, so remember this point, it's square है। BP is 4, PM is 1, DP is 3, PN is 2. Now what is the total? किसका LCM लोगे? Again total, right? So just let me write LCM of DN, I'll take DN, and LCM of BM. So luckily if you say DN is also 5, this is also 5, तो LCM भी क्या होगा उनका? 5 ही होगा। तो आप सेंटर में कितना रखोगे? बस 5 किलो। तो सेंटर में एट पॉइंट B, सेंटर मींस द मीटिंग पॉइंट पे 5 kg। 5 kg तो फिर इसको ब्रेक करना तो बहुत इजी है, 3:2, दैट इज उल्टा हो जाएगा। 5 किलो के 5 टुकड़े तो एक टुकड़ा हुआ 1 किलो का, राइट। सो यहाँ पे आएगा 2 kg, यहाँ पे आएगा 3 kg, राइट। सिमिलरली 5 का 1 और 4 तो यहाँ पे आएगा 4 kg और यहाँ पे आएगा आपका 1 kg। नाउ हियर इट इज 3, हियर इट इज 1,
सेंटर में 3 उधर 1, तो यहाँ पे आना चाहिए 2 kg है, यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है. सो नाउ व्हाट इज दिस रेशियो? 2:2, बेसिकली 1:1. तो ये रेशियो होगा 1:1, बेसिकली इक्वल है. ये वाला रेशियो क्या होगा? दिस इज 2, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? Cn to lengths of Cn to Cm. Cn to Cm. Don't mark it as 1:1, okay? भले ही ऑप्शन में नहीं है, बट अगर इफ आई वाज द एग्जामिनर, मैंने पक्का ऑप्शन 1:1 दिया होता. रिमेंबर ये क्या है? स्क्वायर है. तो स्क्वायर है मतलब लेंथ ऑफ द साइड सेम होना चाहिए. अब ए रेशियो की लेंथ ऑफ द साइड देखो कितनी हो रही है, 2 और 1. 2 + 1 इट वुड बी 3, राइट? एंड ये कितनी हो रही है? 1 और 1, ये हो रही है 2. आर दे सेम? नो. तो इसको सेम बनाना पड़ेगा. सेम कैसे बनाओगे? 3 और 2 का एलसीएम, तो इसको भी मैं 6 बना देता हूं. 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको इंटू 2, तो मेरा ये इंटू 2 दोनों तरफ होगा. ये भी इंटू 2, ये भी इंटू 2. अगर मुझे ये 2 को 6 बनाना है तो दिस शुड बी इंटू 3, तो मेरा ये भी 3 होगा और वो भी 3 होगा. 3 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज ऑल्सो इंटू 3, दिस इज ऑल्सो इंटू 3. नाउ इट इज बैलेंस, है ना? ये भी 6, ये भी 6. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. सो ये मेरा है 3 1s are 3 और ये है 2 1s are 2. So 2:3 should be answer. Cn to Cm. Cn is 2 and Cm is 3. Okay, so answer should be 2:3. So just don't fall in such easy traps, otherwise सब आपकी मेहनत ये होंगी. Now there is a very good question, CAT 2014. Okay, just let's quickly give it a shot. AC 20/06 and these are the sides given. Again अंदर से बाहर जाना, बट इसमें फिर से क्या इजी है? टोटल ये भी 6 6 12, ये भी 9 और 3 12, तो ये 12 kg सेंटर में रख देता हूं. ये कितना होगा? बाकी के जो वेट्स होंगे, this would be 3 kg, this would be 9 kg, right? This would be 6 kg, this should also be 6 kg. सेंटर में 9 है, तो this should be 3 kg. So if you see, रेशियो क्या है इसका? 1:1 है ना? 3:3, that is 1:1. Now what is he asking? Area of triangle ABC. Okay, can you see this 90 degree? यहाँ पे 90 degree है. ये let's say this point is O. Let's say this point is O. Can I find the area of triangle ABD? Please tell me. Yes, you can find, because what is the area of triangle? Half base into height. So if I say area of triangle ABD, it is nothing but half base. What is the base? Base is I can say AD, right? ABD का base होगा AD. And what is the height? 90 degree है, मतलब हाइट होगी, राइट? 90. भले वो स्ट्रेट आपको दिख नहीं रही है, डोंट गो स्केल बाय स्केल. 90 डिग्री का सिंबल है, दैट मीन्स इट्स अ 90 डिग्री हाइट. सो BO इज द हाइट. सो हाफ, व्हाट इज द बेस? AD 6 और 6 12. What is the height? BO is 9. So 2 into 6, 94. Not 9 into 6, 54 is the area of triangle ABD. Okay. Now look at the triangle ABD and triangle ACD. Do they have the same height? Yes, उनका height तो same होगा ना, जो भी height होगा, right? AD is not the height. जो भी उनका हाइट होगा, दैट वुड बी सेम फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. एंड ऑल्सो उनका बेस भी सेम है, राइट? BD और CD. सो आई कैन से देयर बेस एंड देयर हाइट बोथ आर सेम, सो बोथ विल कैंसल. दैट इज नथिंग बट 1. आई कैन से देन ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. सो दोनों का एरिया इक्वल है, और मुझे पता है ABD का एरिया 54 है, तो ACD का भी एरिया 54 होगा, राइट? और इन अदर वर्ड्स यू मस्ट बी नोइंग, अगर ये 1:1 बांट रहा है, दैट मींस AD इज द मीडियन, एंड मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल हाफ. सो आई नो, अगर मेरा ACD का एरिया, दिस पार्ट ACD का एरिया अगर मेरा 54 है, सो ABD का भी एरिया 54 है, तो ACD का भी 54 होगा. तो ये 54 और ये 54, the total area of the triangle will be 108. That is the answer of this question. Okay, it was a very beautiful question. You need to apply थोड़ा mass point geometry and थोड़ा basic area of triangle का formula. So area of the triangle is 108 units square, right?
इफ यू हैव नोटिस हमने यहाँ पे AC को यूज भी नहीं किया. अकॉर्डिंग टू अस दिस वाज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच वी डिडंट रिक्वायर्ड, राइट? So that is the beauty of this. Please practice as much as possible. Let's move to the next question. Now this altitudes, यहाँ पे ये altitude दिए, just let me write the points. HD to AD is 1:4. So अगर HD मेरा 1 है, AD complete is 4, right? So AD अगर 4 है तो मेरा AH 3 हो जाएगा. Is it clear? Next, BE is 5. BE complete 5 है, ठीक है, और HE 2 है. अगर HE 2 है तो ये हो जाएगा 3. Again it's going from inward to outward, right? ठीक है, just let's quickly do it. टोटल कितना होगा? 3 + 2 5, 3 + 1 4. तो सेंटर में I should keep LCM of 5 and 4 20 kg, right? 20 k this 3 and this 1, that is 4 equal parts. 20 का 4 equal part, एक part होगा 5 का. 5 3s are 15 kg and this is will be 5 kg. Now ये 20 के 5 equal parts मतलब एक part होगा 4 का, right? तो ये कितना हुआ? 4 का 4, ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाला इधर आएगा, तो दिस विल बी व्हाट, जस्ट लेट मी, 4 2s are 8 kg यहाँ पे आएगा एंड दिस 4 3s are 12, ये 12 kg यहाँ पे आएगा. सो अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 7 kg. कैन इज इट मैचिंग? 7 + 8 15. यस. नाउ कम टू दिस स्केल. ये 5 है और ये 8 है. सेंटर में कितना आएगा? 5 + 8, दैट इज F पे 13 kg. दैट्स इट. Now what he is asking, HF to CF, that is this scale I need to do. यहाँ पे C पे 7 kg है, F पे 13 kg है, right? So length का रेशियो होगा इनवर्स, right? तो यहाँ पे आएगा मेरा 7 kg और यहाँ पे आएगा 13. ठीक है, this is the length. Now what is he asking? HF. Tell me what will be HF? HF is 7, right? So HF is 7 and so HF is 7 and what is CF? CF is the entire length. So CF will be 20. So correct answer of this question is 7:20. That should be the answer of this question. Okay. So I hope this question types are clear. How to go from inward to outward. Just keep that starting point in mind. So I hope you are getting it right. थोड़ा practice करो. कुछ भी doubt हो तो reach to us. अब इसके next video में थोड़ा हम हायर लेवल के क्वेश्चन जाएंगे और वेराइटी जो भी और रेस्ट ऑफ द टाइप्स बचे हैं. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.